الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. قرآن مجید کا درس شروع ہو کر تقریباً 11 مہینے ہو گئے. ان 11 مہینے میں ایک پارے کا مکمل درس ہم لوگوں نے سنا. اب آج سے دوسرا پارا جسے سیقول کہتے ہیں یہ درس شروع ہو رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو آخر تک درس قرآن میں بیٹھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ تقریباً 2 رکوع تک، پہلے دوسرے پارے کے تقریباً 2 رکوع تک اللہ نے ایک مضمون کو بیان کیا ہے، اور وہ مضمون ہے قبلے کے بدلنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے انہی کو ذریعہ بنا کر ایک تو بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر بھی انہی کے ہاتھ سے ہوئی. بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے شاندار طریقے پر تعمیر کیا بیت المقدس کو، لیکن اصل بنیاد جو رکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اور بیت المقدس کو بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اور بیت اللہ کو بنایا بنو اسماعیل کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کو بنایا، وہاں کے لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. برسوں سے یہی چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور عرب لوگوں کے اندر بیت اللہ کی اتنی عظمت اور محبت بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں تھا. خود اللہ کے نبی جب ہجرت کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیت اللہ کو دیکھ کر کہا کہ مجھے ساری دنیا میں تجھ سے زیادہ محبت ہے، اگر یہ لوگ میرے اوپر ظلم و ستم نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینے میں یہودی آباد تھے. اللہ نے حکم دیا کہ اب نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو. اب اللہ کے نبی حکم ملتے ہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیے. تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مدینہ منورہ میں نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی.
लेकिन अल्लाह के नबी के दिल में बहुत मोहब्बत थी, चाहत थी कि किसी तरह क़िबले का रुख बदल जाए, बैतुल मक़दिस के बजाय बैतुल्लाह शरीफ की तरफ क़िबले का रुख हो जाए। चुनांचे एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हज़रत जिब्राइल से भी अल्लाह के नबी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी तमन्ना है कि यहूदियों का जो क़िबला है उससे हटकर कोई और क़िबला मेरे लिए हो जाए, और दिल में तमन्ना थी कि इससे हटकर काबे की तरफ रुख करने का अल्लाह हुक्म दे दे। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, मैं भी एक बेबस इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आप अल्लाह से दुआ करें। इतना कहकर वो ऊपर चले गए। अब अल्लाह के नबी के दिल में तमन्ना थी कि जिब्राइल गए हैं, जरूर मेरी तमन्ना का कोई जवाब अल्लाह की तरफ से मिलेगा। तो इसी ख्वाहिश में अल्लाह के नबी बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखते थे कि जिब्राइल क्या पैगाम लाएंगे, क्या पैगाम लाएंगे। तो ऐसा हुआ कि बनु सलमा के महल्ले में अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे थे, जोहर की नमाज। मर्द हजरात आपके पीछे थे, बच्चे उसके पीछे थे, औरतें पीछे थी। आए नमाज के वक्त में हजरत जिब्राइल वही लेकर आ गए कि आप जो है रुख बैतुल्लाह की तरफ फिरो। जोहर की नमाज में 2 रकात हो गए थे, 2 रकात बैतुल मक़दिस की तरफ पढ़े और बाकी 2 रकात हुक्म मिलते ही फौरन सहाबा को लेकर उस तरफ चले गए। जहां औरतें खड़ी थी वहां सहाबा और अल्लाह के नबी वहां पहुंच गए और औरतें मर्दों की जगह आ गई। बिल्कुल क़िबला चेंज हो गया। 2 रकात बैतुल मक़दिस की तरफ और बाकी 2 रकात क़िबले काबा की तरफ पढ़ी, दोनों नमाजें। आज भी वो मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम ही मदीना मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन है, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। नाम ही मस्जिद का मस्जिद अल क़िबलतैन है, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। अब जैसे ही क़िबला बदला तो यहूदी परेशान हो गए। शुरू में तो यहूदी कह रहे थे, जब अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा में आए तो मुसलमानों को परेशान करते थे कि अनक़रीब तुम्हारे नबी भी यहूदी बन जाएंगे, हमारे मजहब को कबूल कर लेंगे, इसीलिए हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। ये मुसलमानों से यहूदी कहते थे, ये परेशानी थी। तो जैसे ही हुक्म बदल गया तो यहूदी परेशान हो गए। परेशान होकर कहने लगे कि इन मुसलमानों को क्या हो गया कि अचानक जिस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उस क़िबले को छोड़कर दूसरी तरफ रुख कर लिए। तो अल्लाह ने यह आयत उतारी और उसमें इसका जवाब दिया गया, सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नास, अनक़रीब कहेंगे बेवकूफ लोग, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, किस चीज ने फेर दिया उनको उनके उस क़िबले से जिस पर वो थे। कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए उनसे, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, वो हिदायत देता है जिसको चाहे सीधे रास्ते की तरफ। फिर अल्लाह की मर्जी है, असल में अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कहे कि इस तरफ पढ़ो तो उस तरफ पढ़ेंगे, उस तरफ फिरो तो उस तरफ फिरेंगे। अल्लाह की मर्जी है, तुम कौन हो एतराज करने वाले। सबको पैदा करने वाला अल्लाह, वो अल्लाह हुक्म दिया था कि वहां नमाज उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ो तो उस तरफ पढ़ी। अब अल्लाह का हुक्म है कि इस तरफ नमाज पढ़ो तो इस तरफ पढ़ेंगे। तो अल्लाह के हुक्म पर एतराज करने वाला बेवकूफ हो सकता है, वो मालिक है। गोया कि वो एतराज अल्लाह के नबी पर नहीं कर रहे थे, किस पर कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर कर रहे थे। तो अल्लाह ने कहा कि ये बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो एतराज में असल में आप पर नहीं मेरे ऊपर कर रहे हैं कि क्यों क़िबला बदल गया। और फिर दूसरी आयत है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता,
इसी तरह हमने तुमको एक ऐसी जमात बना दी जो एतदाल वाली है। अल्लाह ने इस उम्मत की तारीफ कुरान मजीद में फरमाई कि ये उम्मत उम्मत वसत है। वसत का मतलब है एतदाल वाली उम्मत, हर चीज में एतदाल को पसंद करने वाली उम्मत। और इससे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं वो या तो इफरात का शिकार हो गई या तफरीत का शिकार हो गई, या तो एकदम गुलू में या एकदम छोड़ दिया। दीन को अपनाया तो ऐसे अपनाया कि ना बीवी बच्चे कुछ भी नहीं, सब छोड़कर जंगलों को चले गए। और जब बीवी बच्चों की तरफ रुख किए तो ऐसा रुख किए कि अल्लाह याद ही नहीं आया उनको। तो इसे कहते इफरात या तफरीत। पहली उम्मतों के अंदर यह चीज थी, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत की तारीफ ये फरमाई कि इस उम्मत के अल्लाह ने उम्मत वसत बनाया, एतदाल वाली। और ये जो अल्लाह ने किबला चेंज किया मदीने में, उसकी वजह भी उलमा ने यही लिखा है कि उम्मत के अंदर एतदाल पैदा हो जाए। क्योंकि मदीना मुनव्वरा में जो यहूदी थे वो अपने नबी को इतना मानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को, कि वो हमारे नबी का और हजरत ईसा का इनकार करते थे, साफ उम्मत मोहम्मदिया का इनकार करते थे। और उनको उनके क़िबले की और तौरात की इतनी अहमियत थी कि अल्लाह के दूसरे किसी बातों की अहमियत उनके अंदर नहीं थी। तो अल्लाह ने चाहा कि ये उम्मत मोहम्मदिया भी ऐसी ना हो, उनके अंदर तमाम पैगंबरों की अहमियत आए, तमाम पैगंबरों की शरीयत की अहमियत उनके दिल में पैदा हो। इसलिए मदीना जाती ही अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम अपना रुख जो है बैतुल मक़दिस की तरफ करके नमाज पढ़ो, जिस तरफ कई हजारों पैगंबर नमाज पढ़ा करते थे। अब ये हुक्म देने से एक तो बनी इसराइल के पैगंबरों की मोहब्बत पैदा हो गई, और दूसरा मकसद ये था कि ये उम्मत एतदाल पर रहने की वजह से क़ियामत के दिन दूसरे लोगों के लिए और दूसरी उम्मतियों के लिए गवाह बन सके। कोई भी आदमी शरीयत के एतबार से गवाह बनता है तो गवाह के लिए शर्त यह है कि जिसका गवाह बन रहा है वो उससे बहुत गायब दर्जे मोहब्बत करने वाला ना हो। यानी बाप के हक में बेटा गवाह नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत होती है। अब गवाही पूछेंगे तो वो बाप की ताईद में गवाही देगा। इसी तरह मुद्दा अलैह, जिसके ऊपर बयान करने के लिए बुलाया जा रहा है, उसकी नफरत भी इसके दिल में ना हो, ऐसे आदमी को गवाह बनाए। तो अल्लाह ने फरमाया वो सिफत इस उम्मत मोहम्मदिया के अंदर रखी है। अल्लाह ने उम्मत वसत बनाया कि हर चीज में एतदाल वाली। और क्यों उम्मत वसत बनाया? लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुम हो जाओ लोगों पर गवाह। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल तुम पर गवाह। इस उम्मत के जरिए दूसरे उम्मतों की गवाही पूछी जाएगी। चुनांचे हदीस पाक में आया है कि क़ियामत के दिन अल्लाह दूसरे पैगंबरों को खड़ा करेंगे उनके उम्मत के साथ। एक नबी के साथ 2 आदमी होंगे, किसी नबी के साथ चंद आदमी रहेंगे, किसी नबी के साथ कुछ ज्यादा आदमी होंगे। तो सबसे पहले अल्लाह उस नबी से पूछेंगे, क्या तुमने पैगाम अपनी उम्मत को पहुंचाया था? सब बातें बताई थी, आखिरत के बारे में सब बताई थी। पैगंबर कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हमने बताया था। तो उनकी उम्मत से पूछा जाएगा कि तुम्हारे नबी ने तुमको सब बातें बताई थी, जब बताई थी तो तुमने गुमराही का रास्ता क्यों इख्तियार किया? तो उम्मत जो है उन पैगंबरों की साफ इनकार कर देगी, ए अल्लाह हमारे पास कोई नबी ही नहीं आया, हमें कोई बताने वाला नहीं आया। तो अल्लाह जो है पैगंबरों से पूछेंगे, ये बताओ तुमने इनको दीन की बात पहुंचाई है, तबलीग की है, इसके गवाह कौन है? तो सब पैगंबर कहेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया गवाह है। तो अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया से पूछेगा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि इन पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मत को
अल्लाह की बात पहुंचा दी थी, तो उम्मत मोहम्मदिया कहेगी कि हाँ, हम गवाही देते हैं कि पैगंबरों ने इनको इनकी बात पहुंचा दी थी। तो अल्लाह फिर उम्मत मोहम्मदिया से पूछेंगे, तुम्हें कैसे पता, तुम तो बहुत बाद में आए, ये पैगंबर तो बहुत पहले आए, तुम्हें कैसे पता चला कि इन पैगंबरों ने अपनी उम्मत को बात पहुंचा दी थी? तो उम्मत कहेगी, हमें हमारे नबी ने बताया है और हमारे नबी बिल्कुल सच्चे हैं। हमारे नबी ने यह बात बताई है कि हर पैगंबर अपनी उम्मत तक अल्लाह की बात को पहुंचा कर गए। तो अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया की गवाही को कबूल करेंगे। तो शरीयत के अंदर उम्मत मोहम्मदिया की गवाही की इतनी अहमियत दी गई, तफसीर में लिखा है, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी और सहाबा बैठे हुए थे। हजरत अनस फरमाते हैं कि हमारे सामने से एक जनाजा गया, तो आपस में लोगों ने बात किया, बड़ा अच्छा आदमी था, बेचारा इंतकाल हो गया, बेचारे का जनाजा जा रहा है, इस तरह बात किया। तो अल्लाह के नबी सुन रहे थे, कहा कि वजबत, वाजिब हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा आया, उस जनाजे के ताल्लुक से आपस में बात किया कि बड़ा बुरा आदमी था, गलत काम बहुत करता था, उसका इंतकाल हो गया। वजबत, अल्लाह के नबी ने फिर दूसरी मर्तबा कहा। तो हजरत उमर ने पूछा, अल्लाह के नबी ये वजबत क्या है, क्या वाजिब हो गई? तो अल्लाह के नबी ने कहा, इस उम्मत को अल्लाह ने दुनिया के अंदर गवाह बनाया है, ये जो बात जबान से निकालेगी अल्लाह वो फैसला कर देंगे। तुमने पहले जनाजे के ताल्लुक से कहा बड़ा नेक आदमी, तो अल्लाह ने जन्नत वाजिब कर दी, और तुमने इसके ताल्लुक से कहा कि बड़ा बुरा आदमी, तो जहन्नम उसके ऊपर वाजिब हो गई। इसीलिए हदीस पाक में हम लोगों को यह सिखाया गया कि जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है तो उसके बुराइयों का तस्किरा ना करो, अच्छाइयों का तस्किरा। हो सकता है कि उसके तस्किरे की वजह से अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, 4 आदमी, अल्लाह के नबी की हदीस सुनाते हैं कि 4 आदमी अगर किसी मुसलमान के बारे में कहें कि बड़ा अच्छा आदमी था, तो अल्लाह सिर्फ मुसलमान की जबान से निकली हुई बात की लाज रखकर उसे जन्नती बना देते हैं। और अगर किसी के बारे में कहे कि ये ऐसा है, तो वैसे ही फैसला हो जाता है। तो सहाबा ने पूछा, अगर किसी मुसलमान के बारे में 2 आदमी गवाही दें कि फला आदमी बड़ा नेक है, तो अल्लाह के नबी ने कहा, अगर 2 आदमी भी किसी मुसलमान का अच्छाई के साथ तस्किरा करे, अल्लाह उसे वैसे ही बना देता है। इसलिए हमारी शरीयत के अंदर हमें इस बात की तालीम दी गई कि हमेशा अच्छाई का तस्किरा करें, किसी का बुराई का तस्किरा ना करें। हमें क्या पता कि कौन कैसा है, जाहिर में बाज मर्तबा लोग जो है अंदर से अच्छे होते हैं। एक अचानक एक बात याद आ गई, मैं बता देता हूं। किसी मौके पर जुमा में मैंने ये वाकया भी सुनाया था, बात समझने के लिए आसानी होगी इसलिए वाकया बता देता हूं। खिलाफत उस्मानिया में एक बादशाह गुजरे हैं, उनका नाम था सुल्तान मुराद। उनके बारे में लिखा है कि एक मर्तबा रात के वक्त में अचानक बहुत बेचैनी में सारी रात तड़प कर गुजार दी उन्होंने। तो सुबह में वजीर से कहा कि कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई, बहुत परेशानी में मैंने गुजारी है। तो वजीर ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि आपकी रियाया में कोई परेशान है जिसकी खबर आपको पता नहीं है। चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग अपना भेष बदलकर, अपना हुलिया बदलकर, कि हमें कोई ना पहचाने, रास्ते में चल फिरकर गांव के अंदर हालात मालूम करे। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आइंदा रात हम लोग ये काम करेंगे। बादशाह चंद वजीरों के साथ, 4-5 वजीरों के साथ अपना लिबास बदलकर, हुलिया बदलकर रात के वक्त में निकले कि कोई उनको पहचानता नहीं था कि ये बादशाह और वजीर हैं। रास्ते में गांव में इधर उधर घूमते घूमते गांव के किनारे पर गए तो देखा कि एक आदमी सोया हुआ था। सुल्तान मुराद गए, हलाकर देखा तो मालूम हुआ कि यह आदमी मरा हुआ है, मर गया है आदमी।
اور लोग गुजर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। तो सुल्तान मुराद ने वहां जाने वाले आदमी को बुलाया, बुलाकर पूछा कि भाई ये कौन आदमी है, बेचारा मर गया है। तो लोग कहने लगे शायद तुम अजनबी आदमी हो, ऐसा मालूम होता है कि किसी बाहर गांव से आए हो, तुमको इस आदमी के ताल्लुक से मालूम नहीं, ये हमारे महल्ले का सबसे बड़ा जिनाकार आदमी है और शराबी आदमी है, हर दिन शराब पीता रहता है और हर रात किसी न किसी ताइफा के पास रात गुजारता है और सारे महल्ले में लोग इससे नफरत करते हैं, कोई इसके करीब आना पसंद नहीं करता। तो सुल्तान मुराद ने कहा कि भाई इसका तो इंतकाल हो गया है, चलो जरा हाथ पैर पकड़कर कम से कम उसके घर तक पहुंचा दे, ये तो उम्मत मोहम्मदिया में है बेचारा, हमारा तो हक है, ठीक है गुनहगार है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में होने के नाते कफन दफन का इंतजाम करना भी हमारा हक है, हम इसको पकड़ेंगे। तो महल्ले वाले इनकार कर दिए कि हम इसको छीना भी पसंद नहीं करते। तो सुल्तान मुराद ने एड्रेस पूछा, ठीक है बताओ इसका घर कहां है, हम खुद पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि फलां जगह पर है। तो सुल्तान मुराद ने अपने वजीरों से कहा कि पकड़ो इसको, वजीरों को कहा और खुद उसके पैर पकड़े, पकड़कर उठाए। सुल्तान मुराद खुद उसको उठाए, वजीरों ने भी पकड़कर घर तक पहुंचाए और घर का दरवाजा दस्तक दिए तो बीवी बाहर आई। आने के बाद बताए कि एक आदमी मरा हुआ था, मालूम हुआ कि तुम्हारा शौहर है, इसको लेकर आए हैं। अब जैसे ही शौहर की लाश को देखा, बीवी की हालत बहुत दिगरगू हो गई और जारो कतार रोने लगी। मामूल होता है, बहुत देर तक अपने ऊपर काबू नहीं पाई। उन लोगों से पूछा तुम कौन लोग हो, तो बादशाह ने अव्वल इजहार नहीं किया, हम अजनबी आदमी हैं, किसी काम से जा रहे थे तो लाश पड़ी हुई थी उठाकर ले आए। तो जारो खतार बीवी रो रो कर शौहर की लाश के पास आकर कहने लगी, मैं तुमसे नहीं कहती थी, मैं तुमको कई मर्तबा कहा लेकिन तुमने नहीं माना। मैं तुमसे कहती थी कि एक वक्त आएगा कि अगर तुम मरोगे तो महल्ले वाले कोई तुम्हें जनाजा देने के लिए तैयार नहीं होगा, नहलाने और धुलाने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूं कि तुम अल्लाह के वली हो। ये महल्ले वाले नहीं जानते लेकिन तुम अल्लाह के वली हो। तो सुल्तान मुराद को जरा शक हुआ, तो उन्होंने पूछा कि बेगम साहिबा क्या बात है, तुम्हारे शौहर यहां तो महल्ले में कहते हैं कि बड़ा शराबी है, जानी है, लेकिन तुम कहते हो कि अल्लाह के वली हो। तो जाहिर बात है बीवी जितना अपने शौहर के बारे में जानती है कोई दूसरा तो नहीं जानता, हकीकत क्या है बताइए। तो उसकी बीवी कहने लगी कि मेरा ये शौहर रोजाना शराब की दुकान में जाता और जब शराब की दुकान में जब स्टॉक आता तो पूरा का पूरा शराब खरीद लेकर आ जाता, आकर घर में सब शराब को फोड़कर नाली के अंदर बहा देता था और कहता था, मैं जब पूछती थी कि ऐसा क्यों करते हो तो मेरा शौहर कहता था कि कम से कम आइंदा शराब का स्टॉक आने तक मुसलमान शराब पीने से बच जाएंगे, जब दुकान में शराब नहीं है तो कहां से पिएंगे। अब मैं तो हर मुसलमान के पास पहुंचकर शराब से रोकने की ताकत तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन शराब का स्टॉक खत्म कर देता हूं ताकि 2-4 दिन या एक हफ्ता आने तक जब लग जाएगा तो कम से कम इतने दिन तो लोग शराब पीने से बचेंगे। और हर रात किसी ना किसी एक ताइफा के घर में जाता और जाकर उससे उजरत पूछता कि एक रात गुजारने की तेरे पास कितना किराया है। वो जब किराया कहती तो इतना किराया देते और उस ताइफा को नसीहत करते कि देख ऐसा काम मत कर, आज रात का किराया तेरे पास पहुंच गया है, अब तू दरवाजा बंद कर, बत्ती बुझा और खामोश सो जा, अब कोई आए तो अपने घर के अंदर मत लेना, क्योंकि तुझे तेरे पैसे आ गए, तुझे सिर्फ बदकारी करने का काम मकसूद नहीं है, पैसे मकसूद हैं, पैसे तो मैं दे दिया हूं, बस दरवाजा बंद करके सो जा। ये कहकर पैसे देते और दरवाजा बंद करके आ जाते।
اب جب یہ گھر سے باہر آتے تو لوگ دیکھتے کہ طائفہ کے گھر سے آیا ہے، اور جب وہاں سے شراب لے کر باہر نکلتے تو لوگ دیکھتے کہ بہت بڑے شراب کے مٹکے لے کر جا رہا ہے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شرابی ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ زانی ہے، لیکن یہ گھر میں آ کر سب کام کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ بس میں تیرے بندوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اتنا کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ تم ایسا کام کر رہے ہو، سارے محلے میں تمہیں لوگ برا سمجھ رہے ہیں، تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں ہاتھ نہلانے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے اور جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تو میرا شوہر کہتا تھا، ارے پگلی، مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا، میرا کام تو اللہ مجھے جانتا ہے، تو دیکھ میں یہ کام اللہ کو رضامندی کے لیے کر رہا ہوں، جب میرا انتقال ہوگا وقت ایسا آئے گا کہ وقت کا بادشاہ بھی مجھے نہلانے اور دھلانے کے لیے آئے گا۔ تو سلطان مراد کو سارا واقعہ سمجھ میں آیا، تو اس کے بعد بیوی سے کہنے لگے، بیگم صاحبہ تمہارے شوہر کی بات بالکل سچی ہے، بہت خلوص تھا، واقعتاً میں سلطان مراد ہوں اور میں اعلان کروں گا ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں جتنے علماء مشائخ ہیں سب اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ اعلان کیا تو دوسرے دن سب کے سب علماء مشائخ سارے کے سارے، یہاں تک کہ بادشاہ خود آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھایا۔ تو بدگمانی سے بچیں، کون کیسا ہے پتہ نہیں، ظاہری حالت دیکھ کر ہم لوگ کسی کے تعلق سے برا سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ تو ہمیں جو ہے تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ اے امت محمدیہ کا مقام اللہ نے بتایا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کی بھی اللہ کے پاس بہت اہمیت ہے۔ کسی کے تعلق سے کہہ دیتے ہی یہ نیک ہے تو واقعتاً اللہ نیک بنا دے گا، کسی کے تعلق سے کہیں گے برا ہے تو واقعتاً برا بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبانوں سے خیر نکالنے کی کوشش کریں۔ اب آگے آخری آیت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ وجہ بتا رہا ہے، میں قبلہ کعبے کی طرف سے ہٹا کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جس قبلے پر آپ تھے یعنی کعبے کی طرف، اسے ہم نے مقرر نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کا، اس سے ممتاز ہو کر جو پیچھے پلٹ جاتا ہے اپنے لیے الٹ پہ پاؤں۔ چنانچہ جیسے ہی چند دن کے لیے حکم دیا گیا مسلمانوں کو قبلہ بدل کر یہاں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تو مسلمان فوراً مان گئے، صحابہ فوراً بات کی اطاعت کی، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں پڑھنا ہے، کیوں ایسا حکم کیا، بالکل بلا چو و چرا۔ لیکن بعض مسلمان مرتد ہو گئے، یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسی شریعت ہے، اچانک کبھی کہتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں کہ اس طرف نماز پڑھو، یہ کیسی شریعت ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو چنانچہ کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے چند دن تک میں قبلے کو اس لیے بدلا تھا، مجھے پتا ہے لیکن تم کو پتا نہیں ہے، نبی تم کو پتا نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو جتنے لوگ کلمہ پڑھ لیے وہ سب مسلمان ہیں، حالانکہ بعض اس میں ایسے ہیں جن کے دل میں پکا ایمان نہیں ہے، ذرا امتحان کا موقع آ جائے گا تو وہ آپ کا ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے چند دنوں کے لیے قبلے کو بدلا تھا، تو وہ ظاہر ہو گئے اور وہ مرتد ہو گئے، لیکن باقی مضبوط تھے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ قبلے کا حکم بدلنا یقیناً بہت بڑی بات تھی، مگر اللہ نے جس کو ہدایت دیا یعنی صحابہ کرام، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، جہاں حکم دیا اللہ کے نبی کی بات پر وہ فدا ہو جاتے تھے۔ وما کا، اور پھر جو ہے صحابہ کرام کے اندر بھی ایک اشکال آیا کہ اللہ کے نبی اچانک ہم لوگ کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے سے پہلے جتنے مسلمان شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، یعنی تمہارے اعمال کو، جو کچھ تمہارے باپ دادا اس طرف
तरफ नमाजें, क़िबले की तरफ नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह उनको ज़ाया नहीं करेगा, उसका सवाब भी उनको मिलेगा। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़ा मुशफिक और मेहरबान है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है अल्लाह अपने बंदों से। तफसीर इब्न कसीर में इसके ऊपर एक हदीस लिखी है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास बहुत सारे खैदी आ गए। अल्लाह के नबी बैठे हैं, सहाबा इकराम बैठे हुए, खैदी मर्द हैं, खैदी औरतें हैं। तो एक खैदी औरत का बेटा, दूध पीता बच्चा गुम हो गया। अब वो औरत इतनी परेशान, जाहिर बात है दूध पीता बच्चा गुम हो गया। अब जिसके गोद में बच्चा था वो औरत भागती और उस बच्चे को लेकर देखती, जब देखती कि वो दूसरे का बच्चा है वहां छोड़ती, जिस औरत के हाथ में बच्चा था वहां दौड़ दौड़ कर जाती थी। अल्लाह के नबी देख रहे थे, साहबा भी देख रहे थे। अचानक उस औरत को अपना बच्चा भी मिल गया, तो मिलती है फौरन सीने से लगा ली, प्यार की और उसको दूध पिलाने लगी। तो अल्लाह के नबी ने साहबा से पूछा, ये औरत जो अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत कर रही है, क्या कभी ऐसा कर सकती है कि एक आग जलाएं और उसे हुक्म दे कि अपने बच्चे को इसमें डाल दे, तो क्या वो औरत अपने बच्चे को उसमें डाल देगी? साहबा ने कहा हरगिज नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी ने कहा, ये औरत अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। इसी बात को अल्लाह ने फरमाया, व इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़ा मेहरबान और मुशफिक है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।